اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ساس نے پوچھا تو راشدہ آنٹی نے بتایا ان کی بیٹی ایک ہوٹل میں ریسیپشنسٹ ہے، رات کی ڈیوٹی میں سیلری زیادہ ہے، اس لیے ابھی رات کی ڈیوٹی ہی کرے گی۔ جب مالی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنی شفٹ دن میں بدل لے گی۔ ہم لوگ ان کی کہی ہوئی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتی تھی، مگر روحی بہت ہی سٹائلش اور قیمتی کپڑے پہن کر خوب تیار ہو کر روزانہ رات کو چلی جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی ایسی بھی کون سی ریسیپشنسٹ ہوگی جو اس قدر بناؤ سنگار کر کے رات کو یوں اکیلی نکلتی ہوگی۔ پھر چند روز تو روحی ٹیکسی پر گئی۔ ایک رات رئیس نے میری ساس سے کہا، روحی کی ماں کو بولیے گا میں روحی کو اس کے ہوٹل میں چھوڑ آیا کروں گا، ہاں صبح کے وقت وہ خود ٹیکسی پر آ جائے گی، وہ مجھے کرایہ دے دیا کرے، اس طرح کچھ میری مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ رئیس یوں رات کو اکیلی غیر محرم لڑکی کے ساتھ کہیں جائے، مگر میں خاموش رہی۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ساس نے نہ چاہتے ہوئے بھی روحی کی والدہ راشدہ آنٹی سے جب یہ بات کہی، وہ تو جیسے اسی بات کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے بغیر کسی قسم کا سوال کیے حامی بھر لی، اور پھر تو روزانہ رئیس روحی کو چھوڑ کر آتا اور صبح ہوتے ہی روحی خود سے واپس آ جایا کرتی تھی۔ روحی سارا دن سوتی رہتی تھی۔ ایسے میں راشدہ آنٹی اکثر ہمارے پاس گھر کے نچلے حصے میں آ کر باتیں کرنے لگتی، پھر دھیرے دھیرے وہ جیسے ہمارے گھر کا فرد بنتی گئی۔ میں اکثر سالن زیادہ بناتی اور پھر انہیں بھی دے دیا کرتی۔ یہ سوچتے ہوئے روحی رات بھر کی تھکی ہاری آتی ہے اور دن بھر سوتی رہتی ہے۔ راشدہ آنٹی بیچاری سارا دن بھوکی کیسے رہ سکتی تھی، جبکہ ان کے مطابق وہ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کو دمے کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ زیادہ گرمی یا دھوئیں والا کام نہیں کر سکتی تھی۔ روحی بھی کبھی کبھار جب دن میں جلدی جاگ جاتی تھی تو پھر گھر کے نچلے حصے میں آ کر ہمارے ساتھ گپ شپ لگانے لگتی تھی۔ انہی دنوں میرے ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اس لیے راشدہ آنٹی تو اب صبح ہی ہمارے نچلے حصے میں آ جاتی تھی اور تقریباً شام تک ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ میری چھوٹی بیٹی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی، جبکہ روحی میری بڑی بیٹی سے بہت پیار کرنے لگی۔ یوں اپنے بچے سے ان لوگوں کو پیار کرتا ہوا دیکھ کر میرے دل میں ان لوگوں کی عزت اور محبت بڑھ گئی۔ پھر میں نے نوٹ کیا رئیس کا برتاؤ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات پر لڑتا نہیں تھا اور اس کے مالی حالات بھی بہتر ہونے لگے تھے۔ میں جو چیز کہتی جب مانگتی پہلے کی طرح فوراً سے لا دیتا تھا، جبکہ ابھی کاروبار ٹھیک سے نہیں چلنے لگا تھا۔ راشدہ آنٹی اور روحی کو ہمارے گھر میں رہتے ہوئے 2 سال بیت گئے۔ اب تو شاید ہم بھول ہی گئی تھیں کہ وہ ہمارے گھر میں کرایہ دار ہیں۔ پھر رئیس کا بھی کاروبار آہستہ آہستہ چلنے لگا اور اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اس نے پھر سے پرانی جلی ہوئی کباڑ کی دکان کی مرمت کروا لی۔ آہستہ آہستہ اس میں مال ڈال کر اسے بھی چلانا شروع کر دیا۔ سب کچھ بدل رہا تھا اور پہلے سے بہتر ہو رہا تھا، مگر روحی ابھی تک رات کی ڈیوٹی ہی کرتی تھی۔ ایک روز راشدہ آنٹی شام کے وقت سالن لے کر گھر کے اوپر والے حصے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں۔ صحن میں گرتے ہی ان کے سر پر گہری چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس تھی یا میری چھوٹی بیٹی تھی، جبکہ بڑی بیٹی اس وقت اسکول میں پڑھنے گئی تھی اور رئیس اپنے کاروبار پر تھا اور روحی چھت پر سو رہی تھی۔ راشدہ آنٹی کو یوں گرتے ہوئے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ چیخو پکار سن کر روحی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ اپنی ماں کو یوں بے ہوش دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگی۔ شور شرابہ سن کر آس پڑوس والے بھی آ گئے۔ راشدہ آنٹی کو ہسپتال میں لے کر گئے تو معلوم ہوا راشدہ آنٹی کومے میں چلی گئی۔ ان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور خون نہ بہنے کی وجہ سے خون ان کے دماغ کے اندر ہی جم گیا تھا، جس کے سبب وہ کومے میں چلی گئی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔
2 रोज में ही वो इस दुनिया में से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई, ऐसी जगह जहाँ से ना कोई लौट कर आ सकता है और ना ही कोई लौट कर आएगा। रूही अब बहुत उदास रहने लगी थी। कई रोज तक वो अपनी ड्यूटी पर नहीं गई थी। मुझे अब उसकी हालत देखकर बहुत तरस आता था। इस कदर जवान लड़की अब सच में ही बेसहारा हो गई थी। राशिदा आंटी ने बताया था उनके शोहर का इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से 20 साल पहले हो चुका था। शायद तब रूही 3 साल की थी। रूही बेचारी ने माँ का ही प्यार देखा था और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। 1 महीने बाद फिर रूही ड्यूटी पर जाने लगी। तब मैंने रूही से कहा, अब रईस का कारोबार काफी बेहतर चलने लगा है, तुम ड्यूटी पर मत जाया करो। क्या हम इस काबिल भी नहीं तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके? तब ही रूही जाने क्या सोचते हुए तंजिया मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप बड़ी बोली हो, आप नहीं जानती ये पेट बहुत कुछ करवा देता है और आप तो घर में रहती हैं, आपको क्या पता घर में पकने वाली रोटी और सालन के लिए पैसे कब और कौन कैसे लेकर आता है। रूही ने यूं मुझे गोल मोल बात कहते हुए अजीब सी उलझन में डाल दिया था। मैं सच में ही उस वक्त उसकी बात नहीं समझ पाई थी। इत्तेफाक के मेरी सास राशिदा आंटी के फोत होने के 1.5 महीने बाद इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर मैं रूही से कहने लगी, रूही मैं भी दिन भर अकेली होती हूँ, तुम घर के निचले हिस्से में ही सो जाया करो। मेरे लाख इसरार करने पर भी रूही ना मानी। तब मुझे रूही पर थोड़ा गुस्सा आया। फिर मैं सोचने लगी, जो भी है रूही है तो किराएदार ही। रईस से जब बात की तो वो कहने लगा, अब तो वो रूही को किसी तौर भी घर से नहीं निकाल पाएगा। वो बेचारी अकेली जवान लड़की है, उसका तो आगे पीछे कोई नहीं। माँ थी और वो भी अब नहीं रही। मुझे दिन के वक्त नींद बहुत कम आती थी, इसलिए रात को मैं बहुत जल्दी सो जाती थी। रूही को रईस कब लेकर जाता था और कब वापस लौटता था, मुझे अब इस बात की भी फिक्र नहीं रही थी, क्योंकि मैं उन दोनों पर बहुत अंधा एतमाद करती थी। फिर अचानक से रूही की तबीयत खराब रहने लगी। वो थकी थकी सी रहती, बहुत मुश्किलों से सीढ़ियों पर चढ़ती थी और मुझे अक्सर उसकी कै करने की आवाज भी सुनाई देती थी, जैसे उसका बहुत ही जी मतला रहा हो और उसे कै आ रही हो। कई बार चाहा ऊपर जाकर देखूं, मगर फिर किसी काम में मसरूफ हो जाती थी। 2-3 रोज तक यूं ही चलता रहा तो मैंने सोचा कहीं रूही को कोई बीमारी ना लग गई हो। शायद उसको बदहजमी का मसला हो गया होगा, क्योंकि वो सारा दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाती है। दिन भर सोई रहती थी, रात को ही वो होटल में जाकर खाना खाती थी। शायद बाहर का खाना खाने की वजह से उसका मैदा खराब हो गया होगा। यूं मैं खुद से ही मनगढ़ंत बातें सोचने लगी। फिर एक रोज रूही से तबीयत खराब होने की वजह पूछी तो वो मुझे देखते ही घबरा गई और उसके चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। मुझे उस पर शक हुआ, क्योंकि मैं भी शादीशुदा थी और 2 बच्चियों की माँ भी। ऐसी हालत तो ये लफ्ज मेरे जहन में आते ही मेरा जिस्म कांप उठा। तौबा तौबा, ऐसा कैसे मैं सोच सकती थी? रूही तो पाक दामन लगती थी, मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं था। बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। यूं मैं खुद से ही अपने आप को झिड़कते हुए अपने जहन में आने वाले वसवसों और खदशों को टाल गई। फिर एक रात छोटी बेटी के रोने की वजह से मेरी आंख खुली और मैं किचन में से दूध लेने के लिए जा रही थी तो मुझे यूं मालूम हुआ जैसे रूही आज रात ड्यूटी पर नहीं गई, जबकि रईस भी तब घर पर नहीं था। जाने मुझे क्या हुआ, मैं बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे रूही किसी से झगड़ा कर रही थी। इससे पहले कि मैं घर के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती, तभी मेरी छोटी बेटी बुलंद आवाज में बिलक बिलक कर मजीद रोने लगी। मैं फिर नीचे आ गई और दूध लेकर कमरे में चली गई, मगर वो सारी रात मैंने यूं ही बेचैनी में काट दी और रईस भी उस रात घर में नहीं आए थे। सुबह हुई और मेरी आंख लग गई। यूं मुझे पता ही नहीं चला कि रात में मुझे कोई वहम हुआ था या वो सच बात थी। फिर एक रोज मैं रईस से कहने लगी, कोई अच्छा रिश्ता देखकर रूही की शादी करवा देते हैं। जवान लड़की है, यूं अब इसका रहना ठीक नहीं, और वैसे भी आंटी राशिदा के फोत होने के बाद वो बहुत उदास रहती है। ऐसा ना हो वो नफसियाती हो जाए या फिर जमाना उस पर कोई इल्जाम लगा दे।
तभी रईस बौखला उठा और मुझसे कहने लगा, हम भला क्यों ऐसे करेंगे? मैं उसे हैरानगी से देखते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत दीनदार हो, इसीलिए तो बेसहारा औरतों को घर में किराएदार के तौर पर ठहराते हो। भला एक जवान लड़की को ब्याहना किसी बड़ी नेकी से कम नहीं होगा, और ऐसी लड़की जो यतीम भी है और मस्कीन भी, क्या तुम ये नेकी नहीं कमाओगे? रईस की यूं बौखलाने पर मुझे शक हो गया था, दाल में कुछ काला है। फिर रईस मेरे पास से उठकर चला गया। उसी रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। रईस घर से बाहर निकल गया और मैं सर दर्द की दवाई लेकर लेट गई। अभी आंखें बंद ही की थी कि मुझे रूही के रोने की आवाज सुनाई दी। वो सर्दियों की रातें थीं, इसलिए हर तरफ खामोशी थी। मैंने आवाज पर गौर किया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो रईस से बात कर रही थी। मैं बगैर एक लम्हे की देर किए बाहर निकली तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पर खड़ी रूही रईस से कह रही थी, मेरे करीब भी मत आना, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? मैं उसके अल्फाज सुनते ही बुरी तरह से टूट गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी रईस ऐसा निकलेगा। तभी रईस उससे कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त सही हालत में नहीं, मगर मेरी बात मानो, इस किस्से को खत्म कर दो। रूही उससे कहने लगी, ये मुमकिन नहीं। ये कहकर वो ऊपर चली गई, जबकि रईस घर से बाहर निकल गया। उन दोनों की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया रईस ठीक नहीं। फिर मैंने रईस के घर से जाते ही फौरन से घर के ऊपर वाले हिस्से का रुख किया। जब ऊपर पहुंची तो तवक्को के मुताबिक रूही रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। शायद वो मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी, मगर मैं उसकी सोच से भी ज्यादा साबर और समझदार थी। फिर मैंने रूही को जज्बात में लाते हुए उससे सारा माजरा पूछा। तभी रूही ने मुझे बताया कि वो किसी होटल में नौकरी नहीं करती, वो एक रकासा है, रोजाना रात को कोठे पर जाकर मुजरा करती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अगला सवाल मेरा यही था, रईस ये सब जानता था? तभी वो रोते हुए अचानक से मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, ये सब उसी का तो किया धरा है। मेरा बाप उसके साथ कारोबार में पार्टनर था। बदकिस्मती के उन्हीं दिनों कबाड़ की दुकान को आग लग गई। कोई लिखत पढ़त नहीं थी, इसलिए रईस ने वालिद पर भारी रकम की अदायगी का बोझ डाल दिया, जबकि मेरे वालिद का कहना था उन्होंने रईस को पैसे इतने ज्यादा नहीं देने थे, मगर उनके पास कोई मुआहदा या कोई लिखत पढ़त नहीं थी। इस वजह से हम पर इतना भारी कर्जे का बोझ डाल दिया। वालिद को दचका लगा और वो हार्ट अटैक से फौत हो गए। तभी मैं रूही से कहने लगी, तुम्हारी वालिदा ने तो बताया था तुम्हारे वालिद। अभी मैं इतना ही बोल पाई थी कि रूही मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी, हाँ मेरी वालिदा ने झूठ बोला था। वो और क्या कहती। वालिद के फौत होने के बाद हम बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वालिद ने कारोबार चलाने की गरज से हमारे छोटे से घर को भी बेच दिया था। अब हम किराए के मकान में रहती थी। रईस को जब खबर हुई कि उनका पार्टनर मर गया है तो रकम की अदायगी भी नहीं हुई। वो फिर हमारे घर के चक्कर काटने लगा। मेरी वालिदा ने उससे बहुत मिन्नत समाजत की। तब वो कहने लगा, ठीक है आप लोग हमारे घर में आ जाए, मगर आप लोगों को मेरी एक शर्त माननी होगी। हम लोगों ने ना चाहते हुए भी उसकी शर्त मान ली, क्योंकि सिर्फ रईस नहीं था जो हमारे घर के चक्कर पैसे लेने के लिए काट रहा था, बल्कि कई और लोग हमें तंग कर रहे थे। ऐसे में रईस ने उन लोगों का कर्जा उतारा और एक तरह से मुझे खरीद कर वो मेरी माँ समेत हमें अपने ही घर में झूठे किराएदार बनाकर रखने लगा। मगर उसकी शर्त हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी और बहुत बुरी थी। उसने मुझे कोठे की जीनत बना दिया और मेरी कमाई से सारा कारोबार करने लगा। अब मैं उम्मीद से हूँ रईस से कहती हूँ मुझसे निकाह कर ले और मेरे बच्चे को अपना नाम दे दे, जबकि रईस ऐसा नहीं चाहता। वो जानता है कि मैं एक रकासा हूँ, मगर मेरा यकीन करो मैं बिल्कुल पाक दामन थी। मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं हाथ लगाया सवाए रईस के। हाँ ये सच है, मेरी इज्जत का दुश्मन तुम्हारा शोहर रईस ही था। वो अच्छी तरह जानता है मेरे पेट में पलने वाला बच्चा उसी का है, मगर वो कहता है उसे इस बात का यकीन नहीं। रूही की एक एक बात पत्थर बनकर मेरे दिल का बोझ बढ़ाती जा रही थी। मैं वहीं पर जमीन बोस हो गई।
कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ। रईस किस कदर जालिम और बेहिजा निकलेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने खुद को संभालते हुए रूही के आंसू पोंछे और उससे कहने लगी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाने मुझे उस वक्त रूही बुरी क्यों नहीं लगी। मुझे उस पर मजीद तरस आने लगा था, क्योंकि उसमें उस बेचारी का क्या कसूर था। वो मेरी ऐसी सौतन थी जो हालात की मारी सच में ही बेजारो मददगार लावारिस लड़की थी। मैं क्यों कर उसे अपने घर से निकाल सकती थी, और फिर उसके पेट में पलने वाला मासूम बच्चा, उसका क्या कसूर था। रईस उस रात घर भी नहीं आया। सुबह होते ही जब घर में आया तो मैं रूही को लेकर उसके सामने बैठ गई। फिर मैंने सिर्फ रईस से एक ही बात कही, मैं नहीं जानती रूही और तुम्हारी कही हुई बातों में कितनी सदाकत है, मगर हम सबको एक ना एक रोज उस रब को जान देनी है जो कि सब हकीकत से वाकिफ है। जो भी हुआ जो भी है, अब ये ही हकीकत है। तुम रूही से फौरन से निकाह कर लो, इसके अलावा और कोई हल नहीं, वरना दूसरी सूरत में हम हर तरह से बदनाम हो जाएंगे और हम तीनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। रईस मेरा फैसला सुनते ही मुझसे कहने लगा, तुम कैसी औरत हो, खुद पर सोतल लाने के लिए तैयार हो, और वो भी ऐसी औरत। तभी मैं उससे कहने लगी, मैं जब अनजान थी तब भी तो तुम किसी और औरत के साथ थे, अब जानती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत दीन पड़ी हूँ, इसलिए मैं ये भी जानती हूँ रब का जो हुक्म है मैंने उसे मान लिया है। फिर उसके बाद रईस ने उसी शाम रूही से निकाह कर लिया। उसके बाद मैंने रूही को कभी भी दोबारा कोठे पर जाने नहीं दिया, जबकि रईस भी उससे निकाह कर चुका था। शायद वो भी अब ये नहीं चाहता था। रूही ने बेटे को जन्म दिया और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। रूही मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही लगती है। रईस अगरचा अभी भी उससे वैसे मोहब्बत नहीं करता, उसका अभी तक यही ख्याल है वो पाक दामन नहीं थी, मगर रूही ने मुझसे बहुत सी दीन की बातें सीख ली हैं, यहाँ तक कि उसने कुरान का तर्जुमा तफसीर के साथ मुझसे पढ़ लिया है। कौन अल्लाह के कितने करीब है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।